Assalamu alaikum my dear students. Welcome in online biology class. Hope you all are fine and started preparing for your board examinations. Now here we are about to complete the chapter what we have started. I think this will be the last class of this particular chapter, biotechnology. In this chapter, in last lecture, we have seen the effect of biotechnology on environment. Then we have seen the concept of biopatency. So that patency concept, hope it is clear to you, and I am expecting that you are making the notes of this particular chapter, because very soon I'm going to give you one more assignment based on this chapter. So today we are going to start with the last concept of this chapter, that is biopiracy. It is very interesting and very important concept that you should know about it. Usually you might have heard the word pirates of Caribbean, right? So pirates in general term are those who steal and kill others to enrich themselves. दूसरों का नुकसान पहुंचाकर खुद का फ़ायदा जो उठाता है, that are the pirates. Now biopirates are those who do not kill but steal the patent, यानी कि जो कुछ भी कॉपीराइट एक पर्सन का है उसको मिसयूज़ किया जाता है उस पेटेंट को, वो कहलाता है बायोपायरेसी. सो यूजिंग द नेचर नॉलेज ऑफ इंडिजिनस पीपल विदाउट परमिशन ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, उससे कॉपीराइट नहीं लिया जाता, उसकी परमिशन नहीं ली जाती. से फॉर एग्जांपल आई हैव ग्रोन सर्टन प्लांट एंड उसके जो भी इंटरनल उसके बेनिफिट्स हैं वो मेरी परमिशन के बगैर कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है और अपने नाम पे उसको जब सेल कर रहा है एंड उससे प्रॉफिट उठा रहा है, सो इट मीन्स ही इज़ अ पायरेट, बायोपायरेट्स. ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी. सो फ्रॉम द रूट वर्ड बायो मीन्स लिविंग, पायरेसी मीन्स it is to patenting or taking the life. So genetic material from plants and animals and other biological resources that have long been identified and developed are being owned by companies and manufacturers through patents. इस तरीके के जो है वो they are collecting the small informations from the own companies and उसके बाद जो है वो अपना नाम लगाकर उससे जो benefits निकलता है, so they are the patents. So in short it is a unauthorized misappropriation of any biological resources and indigenous knowledge, so that is called as patent. Okay, that is called as biopiracy. Now most developed, industrialized and financially rich nations are poor in biodiversity, because we are aware about that ये सारे एग्रीकल्चरल वर्क को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की होती है. सो बिफोर आई गो इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू something more about the biopiracy. So it means not only the smuggling of diverse form of flora and fauna, but mainly the appropriation and monopolization of traditional populations knowledge and biological resources. Whatever resources I'll be having, that will be taken by the others. So that biopiracy caused the loss of control of traditional populations over their resources. Say for example, if the India is rich in biodiversity but not good in the use of technology, so इस तरीके का अगर अपना डाइवर्सिटी के ऊपर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट बेनिफिट जो होगा वो दोनों का आधा आधा होगा. बट इन केस इफ़ दे आर टेकिंग देयर ओन नेम ऑन द प्रोडक्ट वट एवर इज़ बीइंग फॉर्म, तो ये जो है वो पायरेसी का एक केस बन जाता है. सो दैट इज़ अबाउट द बायोपायरेसी. सो अगर हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं बायोपायरेसी के, सो इट इज़ द टर्म यूज टू रेफर द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. यूजुअली जो ये होता है, ये सारी चीज़ें यूएस कंट्रीज़ वगैरह जो है वो लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बहुत रिच है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लगाते हैं और यहाँ से हमारी डाइवर्सिटी यूज़ करके जीन्स को जो है वो लोग चुरा लेते हैं और वो लोग उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करके अपना नाम उसके ऊपर डालते हैं और फ़ायदा जो होता है वो उनका होता है, यानी कि बेसिक उसका मटेरियल हमारा होता है
As you are aware about that India is very rich in biodiversity, not only in plants but also in animals. तो बहुत सारी plants और animals की species बहुत सारी available है यहाँ पे, but इन species का मौजूद होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, because traditional knowledge जो है हमारे पास, traditional knowledge naturally includes a deep understanding of ecological processes and the ability to sustainably extract useful product from the local habits whatever we are having. सो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. मोस्ट ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन. काफ़ी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ जो एक नॉलेज होती है वो पास की जाती है, एंड दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ इंडिया वी कैन से. सो दिस नॉलेज मे हेल्प them to develop modern commercial applications that save the makers time, money and efforts, because being good in biodiversity, some components we are having, that is we are expert in something, so that is the components of traditional knowledge that are specially relevant to our global survival includes knowledge of, we are having such kind of knowledge like food crops variety and agricultural or farming practices, sustainable management of natural resources and conservation of biological diversity, we are conserving it, and biologically important medicine, because India is very known for its medicinal treatment, or we can say the system of Ayurveda. तो इस तरीके का इस्तेमाल जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ करती है, बिकॉज दे आर गुड इन टेक्नोलॉजी. उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, डाइवर्सिटी नहीं होती उनके पास, बट दे आर हैविंग गुड टेक्नोलॉजी. तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो लोग करना चाहते हैं, एंड दे वांट आवर लैंड. बट होता क्या है कि वो लोग अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग देयर लेबल ऑन आवर प्रोडक्ट. तो ऐसे बहुत सारे थेफ्ट के, या हम लोग उसको पायरेसी के एग्जाम्पल्स हमको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. Many examples of biopiracy we are having. So most 3 famous example हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. That is a biopiracy case for neem, that is Azadirachta indica, टर्मरिक एज वेल एज फॉर बासमती राइस. तो ये 3 का जो है वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है बायोपायरेसी का. फर्स्टली वी विल सी द पेटेंटिंग ऑफ नीम. सो जो नीम प्लांट है दैट बेसिकली आपको पता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नीम का इस्तेमाल किया जाता है. तो ऑथेंटिकली ये नीम प्लांट जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है. सो द पीपल ऑफ इंडिया इन अ वैरायटी ऑफ वेज हैव यूज्ड नीम सिंस इमेमोरियल. ये याद भी नहीं है कि कब से नीम का प्लांट इंडियन पीपल आर यूटिलाइजिंग. सो Indians have shared the knowledge of the properties of the neem with the entire world. ये एक वर्ल्ड वाइड फैक्ट है कि इंडिया की तरफ से जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो ज्ञान है वो फॉरेन कंट्रीज़ को मिलता है, बट दे आर यूटिलाइजिंग इट एंड दे आर डूइंग द पायरेसी ऑफ इट. So what foreign countries are doing, they are utilizing our resources and they are keep putting their label on it. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसी आई थी कि ग्रीस इन द अर्ली 19s सॉर्ट ऑफ पेटेंट नीम प्लांट के ऊपर उन लोगों ने पेटेंट किया. प्रॉपर पेटेंट का नंबर वगैरह भी सारे ये लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, दैट इज EPO, ऑन द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑन प्लांट्स बाय एड ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल. तो इस तरह का ये बहुत फेमस केस था, यानी कि ये इस तरह से नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, अगेन उसका इस्तेमाल जो हुआ हाइड्रोफोबिक यूज़ उसका, तो उसके ऊपर जो नाम आया वो फॉरेन कंट्री का और यूरोपियन कंट्री का आया. सो दिस इज़ द मोस्ट फेमस पेटेंटिंग केस ऑफ द फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नीम एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी. इसके अलावा भी हम लोगों को जो है वो 2 और फेमस एग्जांपल्स देखनी है. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द बासमती पेटेंट केस. बहुत ही फेमस एग्जांपल है. तो बासमती राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही सालों से, कई हज़ार सालों से जो है वो बासमती लॉन्ग ग्रेन्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है. सो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कॉपीराइट इंडियन पीपल के पास है. दे आर ग्रोइंग, दे आर सेलिंग एंड राइट फ्रॉम द लो रेट टू द हाईएस्ट रेट हम लोग जो है वो उसको बेचते हैं मार्केट में. So since 800 or 700 BC we are having the patent right of basmati rice. So what the people are doing, US, what United Nations are doing, they have released one variety जिसको उन लोगों ने जो है वो नाम दिया टेक्सामती. Okay, we are having basmati, so they gave the name टेक्सामती and they have released the variety and they
दे पुट ऑन इट द बायो पेटेंसी। और उसके बाद उन लोगों ने इंडियन पीपल पे क्लेम किया दैट यू आर हैविंग द पेटेंसी एंड यू आर यूटिलाइजिंग आर नेम एंड यू आर प्रिपेयरिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी रिलीज। तो इस पे हमारा राइट है, आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें सेल करने का कोई हक नहीं है। तो ऑल द इंडियन पीपल एंड ऑल ऑथोराइज्ड चैनल्स गॉट शॉक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो दे पुट अ केस ऑन such kind of countries and this is the second largest producer हम लोग बोल सकते हैं चाइना के बाद। तो इस तरीके का जो ये एक केस निकला, तो इस कंडीशन में जब जाके रिसर्च किया गया, हमारी जो है वो बायोटेक एडवांस मेंबर्स जो थे हमारे साइंटिस्ट, दे हैव टेस्टेड ऑन इट एंड व्हाट दे फाउंड दैट दे टुक द इंटायर जीनोम ऑफ बासमती राइस एंड दे हैव चेंज सर्टन जेनेटिक मेकअप। उसमें से उन लोगों ने कुछ चीज़ को चेंज कर दिया एंड देन उसके बाद एक हाइब्रिड वैरायटी उसकी लोगों ने रिलीज़ की जिसको नाम रखा गया टेक्सामती। तो इसके बाद जो है वो ये प्रूफ हो गया कि बेसिक इसका जो था वो उन लोगों ने इंडिया से चुराया था एंड देन उसके बाद अपनी डॉर्फ वैरायटी उसमें ऐड करके सम जीन मैनिपुलेशन के थ्रू, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत इजीली पॉसिबल है, हम लोग देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है वो ये केस बहुत ही क्लियर हो गया एंड इंडिया वॉन दिस केस। और उस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि जो बासमती का जो पेटेंट है या उसका जो कॉपीराइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल के पास है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी अदर कंट्रीज़ जो है वो करती है। नाउ नेक्स्ट जो बायो पायरेसी का केस आया था इंडिया में वो था ऑन हल्दी, दैट इज़ टर्मरिक। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट टर्मरिक और हल्दी बिलोंग टू द इंडियन मेडिसिनल प्लांट। Okay, since ancient time Ayurvedic system of medicine is using the turmeric as a basic ingredient। और इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक जो कंपनीज़ है इंडिया की बहुत पहले से टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, बट इसके ऊपर भी जो है वो बायो पायरेसी का एक केस बन गया था। टू अमेरिकन रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ Mississippi Medical Center put a claim to the US Patent and Trademark Office, maintaining that they had discovered haldi's healing properties. But surprisingly, it is a fact that it belongs to India. So this meant that they had exclusive right over any such haldi drug and where it in a position to make millions of dollars। यानी what they did, whatever extract with the haldi is having, यानी तुम हल्दी उगाओ चलेगा, what they said that you grow turmeric in your country, but whatever extraction that turmeric is having that belongs to us, वो हमारा copyright है उसके ऊपर, आप उसको use नहीं कर सकते। So in 1995 USPTO granted two Indian nationalists at the university, okay, that Mississippi what I told। so इस तरीके से जब उन लोगों ने ये पेटेंट का केस उन लोगों ने बोला कि इट इज़ अवर पेटेंट, सो दिस पेटेंट एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड द ट्रेडिशनल यूज ऑफ टर्मरिक इन इंडिया बट क्लेम दैट दे हैड बीन द फर्स्ट टू एडमिनिस्ट्रेट। तो इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो इस कंडीशन में इंडियन काउंसिल और यूएस पेटेंट ऑफिसर्स उसको री एग्जामिन करते हैं एंड दे रियलाइज आफ्टर द री एग्जामिनेशन दैट देयर इज अ मिस्टेक एंड दे कैंसल्ड द पेटेंट बिकॉज व्हेन दे रिसर्च दैट सिंस एंशिएंट टाइम, सिंस 800 और 600 BC, हल्दी इज बिलोंग टू द इंडियन कंट्रीज। सो इस तरीके का जब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ री एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि कुछ मिस्टेक है, सो दे हैव कैंसल द पेटेंट। सो दिस वॉज आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट shouted from rooftops about how we are losing our traditional knowledge to marooned foreign companies who have started पोचिंग ऑन आवर एंशिएंट हीलिंग टेक्निक्स। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आते गए, तो इसलिए आज ज़रूरत है एक ऐसे जेनेटिक लिटरेसी मूवमेंट को लॉन्च करने की इन इंडियन स्कूल एज वेल एज इन कॉलेजेस ऑल्सो। So it is a need of hour to launch a genetic literacy movement in Indian school and colleges for better understanding of opportunities and risk related to biotechnology, and also to promote the safe and meaningful use of technologies of modern life science. So it is a today's need, we can say, that we have to prepare such साइंटिस्ट और यंग साइंटिस्ट जो इस चीज़ को समझ सके कि वट एवर गुड रिच फ्लोरा एंड फाउना वी आर हैविंग, हाउ वी कैन यूटिलाइज एंड हाउ वी विल कीप इट टू आवर सेल्फ ओनली और टू आवर कंट्री ओनली. So dear students, like this we have completed this chapter biotechnology.
you go through the entire chapter one more time, whatever video I have uploaded based on this chapter. आप एक और मर्तबा उसको देखो, अच्छे से सुनो, समझने की कोशिश करो, and please start preparing notes, okay, because टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल ऑन द शॉप्स. आप टेक्स्ट बुक्स परचेस करो और उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करो. एंड वट एवर डाउट स्टिल इफ़ यू विल बी हैविंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके, till that, take care. Assalamu alaikum.